بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ دا پنجاب پولیس END رولز 1975 کا رول 2 آج ہم ڈسکس کریں گے۔ END رولز 1975 جنہیں عرف عام میں ہم اسی نام سے بولتے ہیں، اس کے اندر جو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیفینیشن مخصوص انہی رولز کے لیے ہیں یا کچھ اور رولز بھی ان کو گورن کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشنز جنہیں ہم ڈسکس کرنے چلے ہیں، ان کا تعلق انہی رولز سے ہے۔ بھلے اور رولز دیگر انضباطی کارروائی کو ڈیل کرنے والے رولز میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ڈیفینیشنز کسی خاص رول کے تحت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ خاص رولز کے تحت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہی رولز کے اندر ہمیں انہیں سمجھنا ہوتا ہے۔ بہت ساری جو دی گئی ہیں ڈیفینیشنز، ان میں اہم ڈیفینیشنز کو میں نے اٹھایا، اہم ورڈز کو اٹھایا تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ پہلا ورڈ جو استعمال ہوا ہے ڈیفینیشن کے لیے، اسے کہتے ہیں اکیوزڈ۔ اکیوز سے مراد ہے ملزم۔ عرف عام میں ملزم جس پر کوئی الزام لگ جاتا ہے ہم اسے ملزم سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم END رولز 1975 کے تحت ملزم دیکھیں گے تو یہاں پہ ملزم کی 2 کوالیفیکیشنز چاہیے۔ کوالیفیکیشن سے مراد 2 ضروریات چاہیے، اس کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب ہم END 75 کا اسے اکیوز کہیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسپیکٹر، پنجاب پولیس کا انسپیکٹر یا اس سے نیچے کے کسی رینک کا آفیشل ہو۔ نمبر 2، اس کے خلاف دا پنجاب پولیس END رولز 1975 کے تحت تادیبی کارروائی کی جا رہی ہو۔ جب یہ 2 چیزیں مل جائیں گی، اس کا تعلق انسپیکٹر یا نیچے سے کسی رینک کے آفیشل سے ہو اور اس کے خلاف END 75 کے تحت کارروائی کی جا رہی ہو تو اسے ہم اکیوز کہیں گے۔ نمبر 2 ورڈ جو استعمال ہوا ڈیفینیشن کے لیے وہ ہے اتھارٹی۔ اتھارٹی سے مراد وہ اتھارٹی جو کمپیٹنٹ ہے، جو مجاز ہے سزا دینے کی، ان رولز کے تحت ان کے آخر میں دیے گئے شیڈیول میں۔ ان رولز کے آخر میں ایک شیڈیول دیا گیا ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے سیریل نمبر، نیم اینڈ اسکیل آف دا پوسٹ، آگے اس کے لکھا ہوا ہے اتھارٹی۔ تو ہر اسکیل، ہر رینک کی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے، تو گویا جس رینک کی اتھارٹی وہاں پہ لکھی گئی ہے وہی پینلٹی دے سکتی ہے، پنشمنٹ دے سکتی ہے، تو اس کو ہم اتھارٹی کہتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے رولز کے اندر جو پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ آتا ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی جو اس کے اندر نہیں دیا گیا، لیکن میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا یا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اپوائنٹنگ اتھارٹی کا کردار ہماری سروس میں بہت اہم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سروس میں لیتی ہے۔ ہماری اپوائنٹنگ اتھارٹی ہمیں سروس میں لانے کی موجب ہوتی ہے دیے گئے کرائیٹیریا کے مطابق۔ اس کے بعد ہمیں پوسٹنگ دیتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے، ہماری تنخواہ کے معاملات، اور اس کے بعد ہماری ریٹائرمنٹ، ہماری پینشن، فوت ہو جاتے ہیں تو باقی کے تمام معاملات جو ہمارے ڈیتھ بینیفٹس ہیں اور ہماری فیملی کے معاملات ہیں، سارے اپوائنٹنگ اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب رولز نے ایک بہت خوبصورت چیز رکھی، وہ یہ کہ یہ جو سزا جزا کا اختیار ہے یہ بھی اسی اتھارٹی کو دیا جائے، نہ کہ کسی اور کو۔ کیوں؟ پنجابی کی مثال ہے ماں مارے پر مارن نہ دیوے۔ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی، اس کا کردار بنیادی طور پہ ماں کا ہے کہ وہ ہماری سروس، پوری سروس کو، سروس میں آنے سے لے کر ریٹائرمنٹ اینڈ آفٹر ریٹائرمنٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو اسی لیے END کے تحت انضباطی کارروائی کرنی ہے تو وہ بھی اسی کو اختیار ہے۔ وہی پوچھ سکتی ہے کہ تجھے میں نے اتنا کچھ دیا، تیرے اوپر میں نے اتنا ٹرسٹ کیا، تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ تو وہ سزا جزا ان رولز کے تحت دے سکتی ہے جو کہ اس کا حق ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سزا نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو ہر چیز دیتے ہیں، اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اس کی سزا دیتے ہیں۔
मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ हैं, उनके लिए उनके ख़र्चा रोक लेते हैं, जिस्मानी सज़ा और बहुत कुछ हम उनके साथ करते हैं। तो इसलिए ये जो अथॉरिटी है, इसलिए ये जो अथॉरिटी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वही आपकी जो जो आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही आपकी इन रूल्स के तहत पेनल्टी अवार्डिंग, पनिशमेंट अवार्डिंग अथॉरिटी भी है। तीसरी डेफिनेशन मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट यानी अ कंडक्ट कंट्ररी टू अ गुड कंडक्ट। मिसकंडक्ट क्या है? ऐसा काम, ऐसा अमल, ऐसा रवैया, ऐसा बिहेवियर, ऐसी आदत जो कोई शरीफ आदमी नहीं रखता, ऐसा रवैया जो शरीफ आदमी को ज़ेब नहीं देता, जो एक पुलिस ऑफिसर को ज़ेब नहीं देता, उसे हम मिसकंडक्ट कहेंगे, नंबर 1। फिर ये कि कंडक्ट रूल्स 1966 दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, वो तकरीबन 32 के करीब कंडक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक की खिलाफ वर्जी को भी मिसकंडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे सरकारी घर है किराए पे दे दिया है, सियासी या मजहबी जलसा है वहाँ पे तकरीरें शुरू कर दी हैं, टीवी पे, रेडियो पे, अखबार पे अपीयर होना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है, और ये सारे काम किए हैं गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर। हम कोई भी काम जो करेंगे सर्विस के अलावा, चाहे हम बिजनेस करना चाहते हैं, शाम को कोई और अपना काम करना चाहते हैं, एकेडमी खोलना चाहते हैं, कहीं पे भी करना चाहते हैं, हम खुद से नहीं कर सकते, हमें अपनी अथॉरिटी से इजाज़त लेना होगी। क्यों इजाज़त लेना होगी? कि हमारी अथॉरिटी ने जितने बेनिफिट्स हैं वो हमें दिए हैं और हम 24 आवर्स के मुलाजिम हैं, उसमें से कोई भी टाइम हम अपने लिए खर्च करना चाहते हैं किसी और मकसद के लिए, तो हमें अपनी अथॉरिटी से इजाज़त लेनी होगी। इसीलिए हम अपना होम एड्रेस देते हैं कि दफ्तर के बाद हम अपने घर पे होंगे, मेरी ज़रूरत हो तो मुझे वहाँ से बुला लिया जाए। हम लाहौर में अगर पोस्टेड हैं तो लाहौर से बाहर निकलते वक्त हमें स्टेशन लीव लेना होती है, हम अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा सकते। ये सारी बातें मिसकंडक्ट में आएंगी। इसके बाद आपको पता है, सब जानते हैं कि हमारे रूल्स में, पॉलिसीज़ में, रेगुलेशंस में, स्टैंडिंग आर्डर्स में ये लिख दिया जाता है कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना। तो वो काम जो हमने करना है उसको हम छोड़ दें, जो हमने काम नहीं करना उसको कर लें, तो इसे कहेंगे एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। यानी वो हमारी ड्यूटी, वो हमारे फ़राइज़ जो हमें सर अंजाम देने हैं वो हम नहीं कर रहे, और जो नहीं करना वो कर रहे हैं, तो ये भी मिसकंडक्ट कहेगा। इसे कहते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। तो ये ऐसा करना भी क्या होगा? मिसकंडक्ट होगा। इसके बाद मिसकंडक्ट की जो तीसरी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके रूल्स में, END 75 में, वो है कि कोई भी सियासी, समाजी, मजहबी सिफारिश लेके आना गवर्नर पर, चीफ मिनिस्टर पर और अपनी ऊपर हायरार्की में किसी पर, इसलिए कि अपॉइंटमेंट हासिल की जा सके, पोस्टिंग हासिल की जा सके, ट्रांसफर हासिल की जा सके, प्रमोशन हासिल की जा सके, छुट्टी हासिल की जा सके, रिटायरमेंट पेंशन हासिल की जा सके, ये किसी भी लेवल पे अपनी अथॉरिटी के लिए और ऊपर इवन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के लिए इस तरह की सियासी, मजहबी, समाजी सिफारिशें लेके आना, इसको कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, असरअंदाज होने की कोशिश करना। तो इसको आप कहेंगे मिसकंडक्ट। इसी तरह ये अगर END 75 के तहत कार्रवाई हो रही है तो इसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करना, पनिशमेंट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करना इन्हीं जराए से, तो इसको कहा जाएगा मिसकंडक्ट। अगली डेफिनेशन है पनिशमेंट। पनिशमेंट से मुराद है वो पनिशमेंट जो इन रूल्स के तहत अथॉरिटीज इंपोज करती हैं, जो शेड्यूल के अंदर दी गई हैं। वो अथॉरिटीज जो शेड्यूल के अंदर हर स्केल या रैंक के अगेंस्ट आगे सामने लिखी गई हैं,
वो जो पनिशमेंट देती हैं उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि उन पनिशमेंट्स की कैटेगरीज क्या हैं। मेजर पनिशमेंट है, माइनर पनिशमेंट है, फिर मेजर पनिशमेंट में क्या क्या कौन कौन सी पनिशमेंट आती है और माइनर पनिशमेंट में कौन कौन सी पनिशमेंट आती है, ये आगे मुतलका सेक्शन में जाके हम डील करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला वर्ड इस्तेमाल होता है शेड्यूल। शेड्यूल से मुराद ये है वो शेड्यूल जो इन रूल्स के साथ आखिर पे लगाया गया है और उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर समझाई गई हैं और वो इन रूल्स के साथ आखिर पे अटैच कर दिया गया है। जब आप अपने रूल्स देखेंगे आपको ये अपने दफ्तर से, डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं, और आप ज़ाती तौर पे परचेज करें तो मुख्तलिफ लॉ की जो बुक्स हैं जहाँ पे सेल आउट होती हैं वहाँ से भी ये आपको मिल सकते हैं। इसके बाद अगली अहम डेफिनीशन है, बहुत अहम डेफिनीशन, जिस तरह मिसकंडक्ट मेरे नज़दीक बहुत अहम डेफिनीशन थी, इसी तरह अगली डेफिनीशन करप्शन। करप्शन की 3 मेन मैनिफेस्टेशंस, उसकी तारीफें यूं कह लें दी गई हैं, डेफिनेशंस दी गई हैं आपके इन END रूल्स 1975 में। पहली यह है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक का और उससे नीचे का, या उसकी फैमिली का कोई मेंबर, या उसका कोई भी डिपेंडेंट जो उसने लिख के दिया हो कि ये मेरे ऊपर इन्हिसार करता है, मेरा मोहताज है, तो इन तमाम लोगों, यानी खुद उस पुलिस ऑफिसर और इन तमाम लोगों के नाम के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टी का होना, इनके पास ऐसा सरमाया होना जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम हैं उनसे बढ़ के हो। वो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं उनको समझना ज़रूरी है। आप देखें जब हम सर्विस में आते हैं ना तो हमें लिख के देना पड़ता है कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास ये प्लाट है, मकान है, सोना है, और इसके अलावा ये मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, और मेरे पास ये सरमाया है, बैंक बैलेंस है। ये सारा कुछ पूरी तफसील हमें लिख के देना होती है जब हम सर्विस में आते हैं। और फिर हर साल हमें एसेट फॉर्म्स फिल करके सबमिट करने होते हैं, उनमें ये बताना होता है जब मैं आया मेरे पास इतना था, इस साल इसमें ये इजाफा हुआ, कमी हुई, इस साल ये इजाफा हुआ, कमी हुई, और हर साल हम जमा करवाते जाते हैं। तो आखिरी वक्त जो हमारे पास मौजूद है, जो हमने रिफ्लेक्ट किया हुआ है अपने एनुअल एसेट फॉर्म में, अगर हमारे पास उससे ज़्यादा जायदाद है, उससे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है, माली एसेट्स हैं हमारे पास, तो इसका मतलब जिसके पास भी ऐसा होगा ये करप्शन की डेफिनेशन में आएगा। नंबर 2, लिविंग बियॉन्ड द मीन्स, कि इनकम जितनी है उससे ज्यादा महंगा अंदाज़े जिंदगी है। मिसाल के तौर पे एक इंस्पेक्टर या नीचे का कोई भी ऑफिसर 50,000 तनख्वाह लेता है, बच्चे एचिसन में पढ़ रहे हैं, LGS में पढ़ रहे हैं, बीकन हाउस और दीगर महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे फीस अफोर्ड कर रहा है। इसी तरह वो ब्रांडेड लिबास पहनता है, इंपोर्टेड लिबास पहनता है, गाड़ी पे आता है, पुजारो पे आता है, प्राडो पे आता है, या किसी भी गाड़ी पे आता है, उसको मैनेज कैसे कर रहा है। तो ये जो उसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, जो उसकी सैलरी है, इससे हटके ये देखना होगा कि क्या उसका लिविंग स्टाइल कंपैटिबल है उसके साथ, क्या इस तनख्वाह से या जो उसने सोर्सेज ऑफ इनकम बताए हैं इनमें से उसके अखराजात पूरे होते हैं। अगर नहीं होते तो कहा जाएगा कि वो करप्ट है और उसके इस अमल को, उसकी इस कमाई को करप्शन की तारीफ में लिया जाएगा। तीसरी मैनिफेस्टेशन या तारीफ जो करप्शन की आपके रूल्स में दी गई है वो है कि कोई पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल, नीचे तमाम जो भी रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, उनकी किसी की अगर महकमे के अंदर शोहरत है, अपने हेडक्वार्टर में, अपने ज़िले में, तहसील में, उस टाउन में, उस थाने में, उसकी ये शोहरत है कि ये करप्ट है, लोग ये उसके बारे में बात करते हैं, रेफरेंस देते हैं कि पैसे दो और ये काम करा लो, तो ये भी करप्शन की डेफिनेशन में आएगा। तो इस सेशन में मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम सामेईन, हमने END रूल्स 1975 के अंदर दी गई
اہم ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.